Hello and welcome to Footballistan, a very very special episode. Today हम आज डिस्कस कर रहे होंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बहुत दफा लगा कि ये पॉडकास्ट और ये मैच नहीं हो रहा होगा, but as of now we can confirm that the Pakistan team, all 32 team members, technical staff, everyone has been issued a visa for India. The PFF is arranging for the quickest flights out of Mauritius so that Pakistan can play India in Bangalore. And to celebrate this occasion, because Pakistan playing India in India was looking like a difficult reality in the last couple of days, but हम आ गए हैं इस मैच पे और क्या मैच होने जा रहा है, मतलब football aside, 30,000 people at the Kantirava watching Pakistan play India. Fantastic occasion. And to celebrate this and discuss what's going to happen in the match, we have Ali Hassan, जो chief editor है footballpakistan.com के, हमारे previous sessions से पहले भी आते रहे, and a very very special guest who has kindly taken out time from his very busy schedule at the moment. Ashish, he's joining us from Thailand, where the Indian under-17 team is also playing the Asian Cup. And we're going to be talking to them about everything that's going to be happening. And I'll start with Ashish you, because India was the last team to play Intercontinental Cup, and they won it as well. It was, obviously a friendly tournament in that sense, but they are now 6 games unbeaten, and they're coming 11 last 11 we lost just one. Yeah. And I think there's 2 draws. So And even that was Vietnam, so I don't think there's any harm in losing to a team like Vietnam, right? So you're coming into this, खेलना अपने घर पे है. Bangalore is already a football city. The West Block Blues will be out in first. So where do you see India coming into this, and it's the opening game against Pakistan? so I think देखिए जहां भी खेलना है, बट मैं थोड़ा हम्बलनेस दे दूं कि लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान बैंगलोर में हुआ था, 2 मैच की फ्रेंडली सीरीज थी. इंडिया पहला मैच ड्रॉ हुआ, दूसरा पाकिस्तान जीत के गई थी. तो जो भी कुछ हो जाए ऑफ द फील्ड, कितनी प्रोग्रेस को कंट्री कर दे, इट्स इवेंचुअली बिटवीन 11 वर्सेस 11. I will, and Pakistan have decent players, at who played a highest level, in Europe. So I will say, चाहे बैंगलोर में मैच हो, चाहे कहीं मैच, in the end of the day, it's a 90-minute game. And anyone can win it, irrespective of which side you play. It's Pakistan, India, or Sri Lanka, or Nepal. We have seen this in SAF, sometime a particular nation defeating bigger nations, so aisa kuch nahi hai. Indian team also a bit tired, little bit. There are some niggles and injuries. Pause. Okay, Ali's back. So continue. I'll edit in post. Should I start from scratch? Start from the start. And हिंदी में बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, मतलब कैसे रखना है? Whatever is easy. हिंदी में कर लो, इंग्लिश में मत कर लो, जो इजी लग रहा होता है. Okay. So हम्बलनेस से स्टार्ट करते हैं शाहरुख भाई कि कुछ भी हो, किस भी फॉर्म हो, कैसी भी हो, 2013 में मुझे अभी भी याद है इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडली सीरीज एशियन गेम से पहले, आई थिंक वो 2013-14 में था. एंड पहला मैच ड्रॉ हुआ था, बैंगलोर में ही मैच था, दूसरा मैच पाकिस्तान जीती थी. तो मैं ये कह रहा था कि इट्स 11 वर्सेस 11 फॉर 90 मिनट ऑन द पिच, सो एनीथिंग कैन हैपन, irrespective of the form. And India Pakistan, any level, any sport, form goes out of the window, and I think should not value much that India has been undefeated last 5 games, we're beating blah blah blah. It's India Pakistan at any level, any sports, it's always tense and it's always tough. Fair enough. I agree with that assessment कि फॉर्म मैटर नहीं करती, 11 प्लेयर्स होती है. बट एक इसमें मैं ये कहूंगा पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस, क्योंकि हम थोड़ा काम डाउन भी करना चाहते हैं उनको. देखिए 2013 पाकिस्तान इंडिया हुआ सैफ चैंपियनशिप में, राइट? सीनियर टीम्स खेल रही थी. पाकिस्तान डोमिनेटेड फॉर 80 मिनट्स, स्टिल एंडेड अप लूजिंग, राइट? मतलब ये फिक्सचर ऐसा ही होता है. 2014 में बैंगलोर में अच्छा रिजल्ट था. प्राइमरीली अंडर 23 टीम थी हमारी, तो अंडर 23 टीम थी आपकी भी सिमिलर थी, क्योंकि एशियन गेम्स की प्रेप थी. अच्छा 2018, because I feel that it's a bit unfair, and this is just from my perspective, कि आप इंडिया की उस टीम को कंपेयर करें जो 2014-15 में थी टू दिस करंट क्रॉप, क्योंकि वो 5-6 साल का वो जो मैजिक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने डाला था ना, आई थिंक दैट इज गेम चेंजिंग. इवन 2018 में you did not even have your strongest squad and Pakistan lost 3-1. इंडिया प्लेड अंडर 23 टीम, उसको जेन में रखते हैं. अब दोबारा अपने जवाब आपका क्या होगा? मैं इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में भी डाल देता हूँ शाहरुख की. जो 2013 की इंडियन टीम थी वो बूढ़ी टीम थी, एजेड टीम थी. 2011 में एशिया कप हुआ, वही बुढ़े प्लेयर्स थे हमारे, थोड़े से जो एज हो रही थी. तो एक नई जनरेशन उस टाइम आई नहीं थी. नई जनरेशन ऑफ प्लेयर केम व्हेन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन केम इन 2015. ही चेंज, ही गिव 23 डेब्यू इन फर्स्ट फ्यू गेम्स टू द इंडियन प्लेयर्स. एंड बाय द टाइम 2018 वाला जो मैच हुआ सैफ चैंपियनशिप का, स्टीफन टीम वाज सेट एज दे ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर एशिया कप. So he played his under 23 team in the SAF championship. Bad luck for Pakistan is that
Ego's team match experiment are also done. He has final 30 players pool who are also ready for the Asia Cup next year, early January. So I think only thing is now he knows his best 11. Couple of position are empty, which still can taken by any player, but couple of players, key players are also injured for him who are not part of this AF championship. So I think other than that, maybe 8 position are locked. Stephen Ego's team match knows that these 8 players are his first choice. So that's the only bad luck for Pakistan, that this team is settled right now as they're going to play Asia Cup. So they are preparing for the Asia Cup. So the Hero Intercontinental Cup, SAP Championship, Kings Cup, we're playing lots of games. And next few months, are just for the preparation of the Asia Cup. And I think, on paper, if I'm neutral, I'm not Indian or Pakistani, I will say India should be on paper favorite, and they should be setting the tempo of the game. But I'm also Indian by heart, so I understand India-Pakistan game can go anytime wrong, and I don't want to be trolled by Pakistani fan later on using this video if I show, oh, we'll beat 4-0 Pakistan. I don't want to be, अगला troll मुझे नहीं बनना है India-Pakistan की game से. So I'm just a little bit humble also. बिल्कुल अली भाई, coming to you, thankfully Pakistan is not coming into this SAF championship without zero preparation. हमने भी कुछ खेल लिया है Mauritius में, which was an eye opener but a lot of learning experiences, and I think very valuable point by Ashish के we don't have, पाकिस्तान का वो luxury नहीं है. Coach Shahzad Anwar does not have his complete starting 11. एक तो there are still few players that he still wants, but वो starting 11 maybe he's not 100% sure कि यार ये ही 11 के 11 ये 7-8 खिलाड़ी. There has been a lot of experimentation. And what are your thoughts on building up to India Pakistan after that Four Nation Cup? शाहरुख, मैं सबसे पहले इस पर बात का जिक्र करूंगा. इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट व्हेन द पाकिस्तानी पॉलिटिकल फुटबॉल क्राइसिस बिगैन इन 2015. 8 साल बीत गए, 8 साल गुजर चुके हैं, उसको अब तक हुए, हमारी अब तक क्राइसिस खत्म नहीं हुई. उन 8 सालों के अंदर इंडिया एज अ सीनियर टीम हैज प्लेड ओवर 70 इंटरनेशनल मैचेस. 70 से ज्यादा वो इंटरनेशनल मैच इन 8 सालों में खेल चुके हैं. आई एक्चुअली डिड अ क्विक काउंट 2015 से लेकर अब तक. पाकिस्तान ने as of now in the last 8 years has only played 12 full international matches. जब आप 70-75 मैच खेलते हैं ना, when you play 70-75 senior international matches, you have a fair idea what kind of starting 11, what kind of players, what kind of weaknesses, what kind of strengths that you have, and you build on it. If you only play 12 matches like Pakistan because of political crisis, because of FIFA bans, because of political interference, you name it, you're literally starting every single game from scratch. तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम मॉरिशस के 4 नेशंस टूर्नामेंट में गए थे, और हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो तजर्बा था मॉरिशस के खिलाफ, केन्या के खिलाफ, जिबूटी के खिलाफ, ठीक है, वी लॉस्ट ऑल 3 मैचेस. फर्स्ट मैच वाज अ बिट ऑफ अ शॉक बिकॉज हमारी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी उस वक्त, जो स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए थी, तो हमारी डिफेंस थोड़ी एक्सपोज हो गई. और मॉरिशस ने भी, बिकॉज दे हैड लॉस्ट 8 कंसेक्यूटिव गेम्स ऑफ देयर ओन, तो उन्होंने सारी भड़ास हम पे निकाल दी उस मैच के अंदर. तो so they basically thrashed us 3-0. और वही बात है ना, वो जो 15-20 मिनट्स का पीरियड था सेकंड हाफ में, they just ran riot and our defense just couldn't cope. सेकंड मैच में I think we basically had like 90% of the first starting because Abdullah Iqbal और सुलेमान आ गए थे, and फिर हसन बशीर को भी स्टार्टिंग दिया. शहजाद used like 2 holding midfielders, रईस नबी और अली उजैर गुज्जर. तो उस वजह से you could see कि भाई तो टेम्पो थोड़ी सी कम थी. Kenya weren't really much in a hurry either. They were just coming back from their own FIFA bans and political crises in the Kenyan Football Federation. So you could say that this is some kind of a shape that we can have. ठीक है, we still lost 1-0 because of a set piece, and some people might say that वो जो गोल था उसके अंदर शायद हैंडबॉल हुई हो, but that's fine, होता रहता है. कुछ हमें भी चांसेस मिले थे सेकंड हाफ के अंदर, we should have equalized. अनफॉर्चुनेटली जो एक ओटिस खान की शॉट थी वो केन्या गोलकीपर ने सेव कर दी. थर्ड मैच वाज वियर्ड अगेंस्ट जिबूटी. ठीक है, जिबूटी खुद भी दे आर लाइक सिमिलर रैंक टू अस, 193 राइट नाउ इन फीफा रैंकिंग्स. पाकिस्तान इज 195. तो दे वन 3-0 अगेंस्ट केन्या इन द फर्स्ट गेम बिकॉज ऑफ अ वॉकओवर, बिकॉज केन्या की टीम टाइम पे नहीं पहुंची थी मॉरिशस. देन दे बीट वर्ल्ड प्रॉब्लम. हां बिल्कुल, हमारी दुनिया की प्रॉब्लम है. सो एक ये हुआ. फिर दूसरे मैच के अंदर मॉरिशस वाज विनिंग 1-0. जिबूटी केम फ्रॉम बिहाइंड एंड वन 3-1 अगेंस्ट मॉरिशस एट होम ग्राउंड. सर यार ये क्या हो रहा है, ये क्या मस्ती हो रही है भाई. तो थर्ड मैच कम्स इन एंड यू कुड से दैट इवन दो जिबूटी को पहले 10 मिनट में गोल मिल गया,
you could still see that there was a bit of an even contest. Pakistan was pushing forward, they're trying to create chances, and they should have scored at least once in the first half, and they also had a good chance in the second half too. बट वही बात है ना, किस्मत थोड़ी हमारी फूटी निकली, थोड़ी सी आप डिफेंसिव मिस्टेक्स कहें या गोलकीपिंग मिस्टेक्स कहें, या जिबूटी जस्ट गॉट अ बिट फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ देयर काउंटर अटैक्स, दे वन 3-1. ये मैं जरूर कहूंगा उस पॉइंट पे, ठीक है, the result was a bit flattering to Djibouti. We should have taken our chances much better. We should have been more clinical. And the way I see it, Shahzad should have probably started our strongest lineup in the first half and then made changes in the second half just to see, ताकि आप बाकियों को लाएं जो बाकी आपकी स्कोर बेंच स्ट्रेंथ थी वगैरह वगैरह. अब ये है कि we have played 3 physically strong teams, ठीक है, not exactly the best teams in the world, the way India has been playing regularly, और इंडिया ने बड़ा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है. Now we're going वीजा की भी सिचुएशन अब कहीं जाके सॉल्व हुई है, टिपिकल देसी ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम, टू बी फेयर. इंडिया पाकिस्तान में सब इस तरह का होता है गंद, एज वी ऑल नो अबाउट दैट. तो अब ये है कि पाकिस्तान की टीम जब बेंगलुरु पहुंचती है तो दे प्रॉब्ली विल हैव लाइक व्हाट लेस देन 24 आवर्स बिफोर द गेम, डिपेंडिंग कब उनको फ्लाइट मिलती है, या आज रात की या कल शाम की. तो इट डिपेंड्स हाउ इट इज. बट मैं समझता हूँ ये जो शहजाद अनवर ने एक्सपेरिमेंटेशन की थी, उम्मीद है द काइंड ऑफ लाइनअप वी हैड अगेंस्ट केन्या, that is your basic starting lineup. ठीक है, you can probably swap a couple of players on the full backs, or maybe have someone different in the center midfield, etc. You can do that. But I hope we play the same lineup we had against Kenya. So आगे कम से कम ना we can defend in numbers against India at the home ground. एक बात बोलूंगा शाहरुख, अली सिंह भाई, एक बात बोलना चाहूंगा. मेरे हिसाब से पाकिस्तानी फैंस को इन मैचेस का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए. सैफ का भी एंड द 3 नेशन 4 नेशन व्हाटएवर दे आर, this should be used as a platform to build a team for actual World Cup qualifiers. Pakistan should try to win the playoff, because if they don't win that playoff, then they're out of these official games again. And the 4-year cycle, they're gone. That's the target. That is I think as a South Asian fan, I will want all the South Asian team in those group stage. It's important for us to play these official games. We are not going to grow our football by playing 4 Nations. SAF Championship is nothing. I'm very honest. A whole important point, and for Indian perspective, I am seeing these games, all these games are two-way. One is preparing for AFC Asian Cup and winning that World Cup group stage qualifier and going to the 3rd round. But India has never went to 3rd round. So that's progress for me. I'm not looking India. I want India to see qualify for the World Cup. I'm not looking into that. I'm saying step by step, they should reach 3rd round, because we never reach. For in case of Pakistan, they never won the any official qualifier game, if I'm not wrong. Yeah. I think they should try to aim somehow make a team for that playoff. If that even mean trying 50 players in SAF Championship, 3 nation 5 nation friendlies or friendly game, try 50-60 players, there is no doubt the coach should have his final 30 or 35 men squad ready for the actual camp for that playoff game. And very sad, it's just 2 matches, one home, one away, and that fate of a nation will be decided for next 4 years based on that playoff game. So that's my whole point is, and that's my message for Pakistani fans, because I'm very realistic with the approach of how we our part of the world see football, because we have to see smaller steps, not think about World Cup straight away. हाँ बिल्कुल, I agree with that. और मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट भी ऐड करूंगा कि the aim actually is the World Cup qualifiers in October. इसमें कोई शक की बात नहीं. But these kind of matches are important. कम से कम ना you can at least decide, let's say 90% or 95% of your starting 11. अगर आपने 11 खिलाड़ी खिलाने हैं, आपके पास कम से कम 8 तो पक्के होना. And then जो भी आप additions कर सकते हैं over the next coming months through documentation, etc. Because Pakistan is one of those countries which actually has dual citizenship. India अब तक allow नहीं करता. मैं तो चाहता हूँ इंडिया allow करे. मैं चाहता हूँ इंडिया अपनी diaspora Game over for South Asia. I'll be very honest, if India does allow dual nationality, at least for the football team, whatever the political situation is, I think India is one cycle away from World Cup. The quality of the Indian diaspora is the highest in South Asia. So that would be amazing to see those players play for India. But quantity wise, Pakistan have more players playing in Europe. Indian don't have. We have top players, but not in quantity. But yeah, India, if in talking about types in the Indian origin player, we just need 2 or 3 players. We don't need 11 players from Europe coming in. We just need couple of players in key position which can complete that puzzle. It's like ISL team
having 4 foreigners in 4 important position. If you can get that, but that's impossible. शाहरुख, तो वो डिस्कशन दूसरा है. मैं एक पॉइंट याद कराता हूँ आपको ना कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान अभी है, स्टीफन कॉन्स्टेंट जब 2015 में आए थे, इंडिया वाज अराउंड 172 फीफा रैंकिंग नेशन दैट टाइम. वी प्लेड दैट एशिया कप वर्ल्ड कप प्ले ऑफ अगेंस्ट नेपाल. ओके, वो स्टीफन का पहला ऑफिशियल मैच था एंड हमारी टीम बहुत बदतर हालत में थी, बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा. मतलब हम वन ऑफ द वर्स्ट एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल से आए, क्योंकि हम 2013 सैफ चैंपियनशिप हार गए, क्योंकि हम सैफ कभी हारते नहीं थे. विम कोरमन्स की टीम, मुझे पता नहीं वो क्या डच फिलोसफी डाल रहे थे इंडिया में, क्या खिचड़ी उन्होंने बनाई कि हमारी फुटबॉल वर्स्ट, हम सबसे घटिया फुटबॉल खेल रहे थे. सुनील छेत्री ने हमें बचाया बांग्लादेश के अगेंस्ट फ्री किक मार के, एंड अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो, उसके बाद वो 2014 में भी हमारी टीम बहुत बेकार खेली. फाइनली गॉट सैक और स्टीफन के पास भी यही चैलेंज था. ही डिडंट नो हु आर द प्लेयर्स. उस टाइम आईएसएल आई लीग की राइवलरी चल रही थी, कुछ प्लेयर आईएसएल में थे, कुछ आई लीग में थे. तो स्टीफन ने भी 23-24 डेब्यू दिए उन मैचेस से अराउंड, एंड वो नेपाल के अगेंस्ट बहुत मार्जिनली हम जीते थे. बट अगर वो मैच हम नहीं जीतते, नेक्स्ट 4 साल की साइकिल में हमारे पास मैचेस ही नहीं होते खेलने के लिए, क्योंकि एज अ साउथ एशियन कंट्री वी डोंट अरेंज मच फ्रेंडलीज ऑल्सो. हमारे फ्रेंडलीज बहुत कम होते हैं. अब जाके इंडिया में होने लग गए कि हम रेगुलर फ्रेंडलीज खेलते हैं. तो हमारे लिए तो यही मैच सब कुछ है, चाहे हम किसी से भी खेले 4-0 हारे, बट दैट्स अ लर्निंग फेज फॉर आवर बॉयज टू प्ले. पाकिस्तान सिमिलर सिचुएशन में, तो मैं इसलिए कह रहा था कि उनको इस टाइम पे मेरे हिसाब से पाकिस्तानी जो फुटबॉल हार्डकोर फैंस हैं वो तो समझते हैं, पर जो हमारी आम जनता है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, वो तो बोलते हैं भाई हार गए इंडिया के अगेंस्ट या सैफ में हार गए, इनके बस का कुछ, इनका बजट बंद कर दो, इनको पैसा मत दो. ये होता है, इंडिया में भी हुआ है ना कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, बंद कर दो फुटबॉल. पर मेरे लिए मैं ये मैसेज अपने थ्रू देना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि ये सैफ चैंपियनशिप को एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड ना देके, आई थिंक अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेस होंगे, क्योंकि नेपाल, हमें बात करी नहीं है, बट नेपाल, बांग्लादेश सबको जीतना है. मालदीव्स दे आल्सो वांट टू विन, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा. बट उससे पाकिस्तान की टीम भी शायद, जो एक उनको प्रैक्टिस चाहिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ के लिए, वो शायद उनको मिल जाए. बिल्कुल, एंड आई थिंक ये जो प्रिपरेशन होती है, दिस इज व्हाट द कोच हैज सेड ऑन रिकॉर्ड. शिदात अनवर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि यार देखो, 4 नेशन कप, सैफ चैंपियनशिप, सितंबर की विंडो, दिस इज ऑल प्रिपरेशन फॉर वन मैच. वी नीड टू विन दैट मैच. उससे पहले तैयारी है, हर चीज उसकी तैयारी है. रिजल्ट्स डोंट मैटर. एंड एज पीपल हु बीन ऑब्जर्विंग, एंड मैंने बड़ी डिटेल को 2 घंटे की वीडियो इस पे हमने बनाई है ऑफ play by play breakdown of how Pakistan did at the 4 nation cup. तो Pakistan did well in particular batches. personnel changes थे, ये थे. जिबूटी के खिलाफ पाकिस्तान could have scored 6-7 goals. मतलब वो जिबूटी की किस्मत है कि मतलब they try one thing, looping header of a ball with 2 defenders on each side. How did that go in? और मतलब गोलकीपर की प्लेसमेंट भी गलत, तो उनकी किस्मत भी चलती रही इस सिचुएशन में. बट आई थिंक ये अभी आज मुझे सुबह एक नेपाल के क्लब ऑफिशियल का ही मैसेज आया कि यार वी वॉच द 4 नेशन कप, एंड वैसे अगर नेपाल ड्रॉ भी निकाल लेना अब आप लोगों के खिलाफ, तो अच्छा ही होगा हमारे लिए. भाई, पर नेपाल को अंडरस्टैंड मत करना, सैफ चैंपियनशिप वर्ल्ड कप फॉर देम. नहीं, ये मैं वियतनाम वालों को भी बोल के आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोच को बोल के आया, मैं कहा फेवरेट हो, ये हो, वो हो, एंड बाद में मुझे कोच आके बोलता है कल तो तुम कुछ और कह रहे थे, या मैच में कुछ और हो गया एएफसी अंडर 17 एशिया कप में. तो मैंने करना पड़ता है कई बार, मे बी देयर आल्सो मेकिंग यू ओवर कॉन्फिडेंस. बट आई थिंक नेपाल, आजकल क्रिकेट ने ओवरटेक कर दिया है नेपाल में, इसलिए शायद सैफ चैंपियनशिप का हल्ला कम है. नहीं तो एक टाइम पे सैफ चैंपियनशिप वाज लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर देम एट एनी लेवल, ऑल स्पोर्ट्स, इट वाज एवरीथिंग फॉर देम फॉर सैफ चैंपियनशिप. वो भी एक थोड़ा देखो, क्रिकेट ने नेपाल को भी खींच लिया अपनी तरफ. Which is just sad to see another, cricketization of another country. But coming back to this, I want to get into the squad a bit more, and I'll start with you, Arshit. But before that, I'm going to ask another question. The tournament itself is in Bangalore, and I'm sure probably you've been to the Kantirava as well. Amazing crowd from what I've seen. Probably tickets will be sold completely for an India-Pakistan game. How much of a difference will that make for India? Second, is Bangalore the best place you would say to host a match like this? Or would you say there would be one other place, maybe the Northeast, Kerala, where this would be even a bigger game? आई थिंक से स्टेडियम का साइज देख के बात करते हैं. नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्टेडियम्स नहीं है, जहां 30,000 लोग या 40,000 लोग आ सकें. केरला में, कोची में एक स्टेडियम जहां केरला ब्लास्टर खेलती है, अगर वहां ये मैच होता, कोची स्टेडियम में, वो अगेन पॉलिटिकल रीजन है, वहां पे भी स्टेडियम को गवर्नमेंट अथॉरिटी ओन करती है, तो उनका रेंट, ये सब कुछ बहुत लफड़े इंडिया में इन मामलों में, स्टेडियम्स के मामले में. अगर कोची में मैच होता तो मे बी इट वुड हैव बीन अ ग्रेट क्राउड.
फुल हाउस अगर उसको मार्केट करे। इंडिया में मार्केटिंग बहुत जरूरी है, लोगों को पता ही नहीं होता कि मैच हो रहा, तो उसमें सैफ चैंपियनशिप वालों की, चाहे सैफ की बात कर लो चाहे एफएफ की बात करो, मार्केटिंग की कमी है। सेकंड थिंग, कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम, अगर वहाँ 80,000 की ऑफिशियल कैपेसिटी है, 80,000 तो नहीं भरेगा बट अराउंड 50 से 60,000 की कैपेसिटी में क्राउड आ सकता था अगर कोलकाता में मैच होता। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बैंगलोर में मैच है, मे बी वन ऑफ द फैन ग्रुप जो बैंगलोर में हमारे हैं, दे आर दी, जो यूरोप से थोड़ा चैंट्स वेस्ट एंड द ब्लॉक फ्लैग्स ब्लूज एंड और सारे। वेस्ट ब्लॉक ब्लूज और ब्लू पिलग्रिम्स का भी बड़ा बेस है बैंगलोर। तो उनका बहुत ही, दे विल हैव अ चांस फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर, दे विल हैव चांस फॉर इंडिया, सो दे विल मेक डिफरेंट नॉइस। एक होता है स्टेडियम में हल्ला होना, हो, एक होता है सिस्टमेटिक हल्ला होना। बिल्कुल। सो जो अपोनेंट टीम के प्लेयर को अगर कोई चैंट, फॉर एग्जांपल मैं भी कैमरे में बोल तो नहीं सकता, अगर कोई गाली भी दे रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में गाली दे रहे हैं तो गाली पहुंचेगी ना ग्राउंड तक। अगर बिल्कुल। कोई, मैं एक गाली दे रहा हूँ, कोई और गाली, तो कोई तब पहुंचती नहीं है। तो वो एक सैड डिफरेंस आपको बैंगलोर क्राउड में देखने को मिलेगा। थोड़ी एजुकेटेड क्राउड है फुटबॉल के टर्म्स में, आप बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तभी एक्टिव रहेंगे जब गोल हो रहे हो, जब अटैक हो रहे हो। दे विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ऑफ द गेम। और थोड़ा डिफरेंट है ये बाकी जगह इंडिया से। बाकी जगह क्या होता है कि क्राउड ज्यादा एक्टिव रहती है जब अटैक हो रहा हो, व्हेन इंडिया इज अटैकिंग या देयर फेवरेट होम टीम इज अटैकिंग। बैंगलोर में थोड़ा सा इन्वायरमेंट उस चीज में बेटर, थोड़ा आपको यूरोप सेंट्रिक इन्वायरमेंट आपको बैंगलोर में देखने को मिलेगा। क्राउड भले ही कम होगी कोलकाता और कोची के कंपैरिजन में। Excellent, excellent. And coming to the players themselves, squad में मतलब what do you, obviously goal threats बहुत है, मुझे तो अभी तक सुनील शेट्टी की समझ नहीं आती, how is that guy doing it? मतलब अभी भी I'm pretty sure beep test कराएंगे, he will beat at least 95% of the squad. No, he beats everyone. He's the fittest player in Bangalore हाँ, FC on record. wow. एंड यार ये देखो, कल मैं वॉच अलोंग कर रहा था अपनी टीम के साथ, तो वो कमेंट में कह रहा था सुनील छेत्री का अच्छा गेम नहीं है। मेरे साथ का बंदा भी 4 ही मैच देखा है उसने, वर्ल्ड फुटबॉल कवर करता है हमारे लिए। वो कह रहा भाई मत बोलो, अभी गोल मार देगा पता नहीं चलेगा, नहीं स्कोर्ड, just little later he scored. Sunil Chhetri is just like, no comparison. I was watching a stat of him, Ronaldo, Messi, Neymar, पर गोल, पर मैच वाइज गोल, अगर आपके टोटल गेम्स और गोल को डिवाइड कर दें, सुनील छेत्री का बेस्ट रेशो है। क्वालिटी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस इस Consistency. लेजेंड की है हमारे रीजन के लिए, जो इसने किया है। मुझे ये बोलूंगा कि देखो, अगर मैं एक मल्टी स्पोर्ट फैन हूं, जो सुनील छेत्री ने इस साउथ एशिया में किया है, मुझे लगता है कि किसी क्रिकेटर ने भी मॉडर्न एरा में, इमरान खान, कपिल देव की बात अलग है, मॉडर्न एरा में जिस फैसिलिटी के साथ, जितने कम सपोर्ट के साथ इसने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और स्पोर्ट्स पर्सन ने हमारे रीजन में किया है। इज इम्पॉसिबल। 38 ईयर ओल्ड, स्टिल गोइंग स्ट्रांग, स्टिल गोइंग फास्ट। भाई मैं उनसे एक प्रोग्राम में था, पता है क्या बोलते हैं वो यंगस्टर्स को? क्या, मैं कुछ नहीं करता लाइफ में, मैं 2 ही काम करता हूँ, 3 काम, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मेरी सैलरी कहाँ खर्च हो रही है, मेरी फैमिली है वो देखते हैं। कह रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे टाइम फिक्स है, मैं अब लंच करूंगा, अब डिनर करूंगा, डिनर लाइट करूंगा। केटो डाइट पे जा चुके हैं मेजॉरिटी, आई थिंक वो प्रॉपर, ही हैज अ फिक्स डाइट प्लान। ठीक है, विराट कोहली से काफी इंस्पायर है, दोनों दोनों एक दूसरे से काफी इंस्पायर है। मैं बोलूंगा कि ये नहीं बोलूंगा छेत्री उनसे इंस्पायर है। एंड उनको पता है कि अपनी बॉडी कैसी मेंटेन और टेक केयर करना है, वो शायद काफी फुटबॉलर्स को पता नहीं होता है। ही नोज, आई स्टिल प्ले 90 मिनट्स ईच गेम, नॉट इजी। मैं यंगस्टर्स थक जाते हैं, हाँपने लग जाते हैं, छेत्री स्टिल गोइंग 88 मिनट, स्टिल मेकिंग प्रेस, स्टिल स्प्रिंटिंग आउट। आई थिंक इंस्पिरेशन हैंड्स डाउन। आई थिंक आई एम जस्ट लकी दैट, मैं कल एक बात और बोला अपने चैनल पे, हमारे खेलना टीवी के चैनल पे ये बात बोला था मैं, कि मैं पिटी हूं उन इंडियंस के लिए जिन्होंने छेत्री को खेलते हुए नहीं देखा है। आई थिंक मे बी डाउन द लाइन जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी स्पोर्ट की, फुटबॉल की इंडिया में, जैसे मैं बोलता हूँ कि पीके बनर्जी हमारे 60s में प्लेयर थे, छेत्री को जिन्होंने, मैं उन लोगों को पिटी हूँ, ऑप्शन था कि उन्होंने छेत्री को खेलते हुए उनके पीक पे देख सकते थे, अभी भी देख सकते हैं, और वो अभी भी नहीं देख रहे। बिकॉज इट्स, यार रोनाल्डो बनना, मेसी बनना अर्जेंटीना में इज स्टिल अ स्टोरी। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बट इट्स स्टिल अ स्टोरी कैन बी रिपीटेड। मैराडोना थे, मेसी आए, एंड देन सेम विद अदर कंट्रीज। शायद छेत्री के बाद छेत्री आएगा ही नहीं, मतलब इट्स इम्पॉसिबल फॉर आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस अ ग्लोबल स्टार, जो शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट सुनील छेत्री ने डेब्यू किया पाकिस्तान में 2005। आज आप लगा लो लगभग 20 साल होने वाले हैं 2 साल के अंदर। वो 20 साल से इज गोइंग स्ट्रांग एंड इज नॉट गॉट, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस डाउन हुई है, परफॉर्मेंस हैज बीन ऑलवेज अप, नेवर वेंट डाउन। Well, I can be glad that I got a chance to see Sunil Chetri play live in front of me, so that was an amazing experience. Coming back to the players themselves, Chetri to है, but
there are very interesting players. Changte hai, defense mein Ringen hai, goalkeepers mein interesting options hai. So what would you say about the whole squad? And when you look at the match, considering ki India just played on Sunday, how will Steamark try to line this up? Yeah, do you think that he is also going to try to play it a bit safe against Pakistan and look at the second game versus Kuwait? Yeah, he'll be like, "Bhai, इनसे नहीं हारना, सैम चैंपियनशिप हार तो इनसे नहीं हारना." नहीं नहीं, इस हारने की बात नहीं है, बिकॉज अब व्हाट मैं आपको हाफ टाइम में क्या हुआ, 0-0 था लेबनान इंडिया, इंडिया वाज डोमिनेटिंग द गेम इन द हाफ टाइम. What Stephen told players at the halftime, Cyril Chetri told to the broadcasters after the game, he told that, will you play like this against Australia and Uzbekistan in Asia Cup? He told them, will you play like this? And you're hoping that you will do well again. I think the inspiration now is to match those countries जिनके हमें एशिया कप, जिनके अगेंस्ट हमें खेलना है, राइट. तो ये सेफ खेलना, ये मतलब मुझे लगता नहीं डिक्शनरी में होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि अब प्रायोरिटी ये है कि हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हर मैच में देना है, बिकॉज तभी हम वो उस मैच में, जो बड़ा मैच होगा जनवरी में, दे पाएंगे, राइट. एक होता है ना कि आप जब प्रैक्टिस में रोज आप एक इस इंटेंसिटी में खेलो जिसका आपको मैच खेलना है, तभी आप मैच वाले दिन भी अच्छा कर पाओगे. आप ये नहीं, आप प्रैक्टिस में आप कम इंटेंसिटी से खेल रहे हो और देन मैच में जाके आप इंटेंसिटी बढ़ा दो और एकदम से अच्छा करोगे. या थिंक काफी कोचेस ये बोलते हैं हर लेवल पे, हर स्पोर्ट्स में. सो आई थिंक अब ये नहीं होगा. हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी सी स्क्वाड नेकेड होगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज वी प्लेड यस्टरडे अ मैच, 2 दिन का ही गैप है. आज ही हम ट्रैवल किए होंगे बैंगलोर, अभी तक स्क्वाड पहुंची है, और थोड़ी सी जैसे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, वो बाहर हो गए, ही कुडंट कॉल अ रिप्लेसमेंट, बिकॉज कुछ जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी ऑफ सीजन में भेजे जा चुके हैं, बिकॉज उनका ऑफ सीजन चल रहा है, बिकॉज क्लब फुटबॉल खत्म हुआ है, तो उनको ऑलरेडी ऑफ सीजन की प्रोग्रामिंग में डाल दिया गया है. जैसे ब्रेंडन फर्नांडिस, who will start on this team any day, his father passed away, so he is not part of the squad. That's one player. उसके अलावा राइट बैक हमारे जो मेन है महेश, वो इंजर्ड है. उसके अलावा ईशान पंडिता हैं जो एक स्क्वाड का पार्ट थे, he got injured before first game, he left the team, now is not part of the SAF championship. Apuya, number 6 of the team, played the one game, since then he's injured again. So थोड़ी कंसर्न तो है इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आई थिंक इनफ क्वालिटी है टीम के पास. बट हाँ, बेंच पे शायद कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कुछ ऑप्शंस ना हो, तो उस बीच में उनको मैनेज करना है, तो कुछ प्लेयर शायद ओवर खेलें तो वो थोड़े थके हुए लगे, ऐसा भी हो सकता है. बट आई थिंक लेट्स सी. मेरे हिसाब से कोई एज सच 3-4 पोजीशन, मैंने जैसे बोला कि कुछ प्लेयर इंजर्ड है, जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर है वो इस टीम का स्क्वाड का पार्ट नहीं, पर स्टिल द स्क्वाड इज गुड इनफ. चांगटे इज बीन डूइंग वेरी वेल. उनके 26 गोल एंड असिस्ट है मुंबई सिटी एफसी के लिए एक सीजन में. फॉर अ इंडियन प्लेयर टू डू, इट्स अ ग्रेट थिंग. आई थिंक 26 गोल एंड असिस्ट थ्रू आउट द सीजन, टू डू इट इज फैंटास्टिक. एंड चांगटे इज अगेन द फाउंड ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को 17 साल में डेब्यू दिया था सैफ चैंपियनशिप 2016-17 में, आपको याद होगा त्रिवेंद्रपुरम में था, तब चांगटे ने 2 गोल मारे थे नेपाल के अगेंस्ट. एंड बट या उनको टाइम लगा, एक बट बेसिक बहुत सही था उनका. अब उनको एक प्रोफाइलिक गोल स्कोरर बन चुके हैं, वो इज ऑलवेज ऑन राइट पोजीशन, एंड ऑफ कोर्स ड्रिबलिंग वाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, मे बी इन साउथ एशिया, आई कैन से. बट एज अ से थोड़े इंजरी कंसर्न जरूर है, बट आई थिंक इतना कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए. कोई मेजर होल नहीं है स्क्वाड में अभी, बस कुछ मेजर मेन प्लेयर एब्सेंट जरूर है, कोई पर्सनल रीजन, कोई इंजरी की वजह से. बट लेट्स सी, बाकी तो देखते हैं क्या होगा. बट एक कम नहीं होगा, आई थिंक दे विल नॉट टेक पैडल फुट अवे फ्रॉम द पैडल. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू फॉर दोज इनसाइट्स. अच्छा अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ पाकिस्तान स्क्वाड पे, और मुझे एक ना थोड़ा सा डर भी था कि ये पाकिस्तान की टीम में से अगर किसी एक आधा प्लेयर का वीजा रह गया ना, हम एक नए मसले में फंस जाएंगे. बट थैंकफुली एवरीबडी गॉट अ वीजा एंड एवरीबडी इज गोइंग देयर. कोच Shahzad Anwar has run a lot of experiments. How do you see Pakistan lining up against India? Because अब मतलब अब थोड़ा सा फोकस भी होगा कि अच्छा यार, we will experiments किए हैं, but now we need to focus on getting the result out of this as well. So what do you see Pakistan lining up with? और उसके साथ साथ who do you see the main players for Pakistan, having observed the Four Nations Cup? मैं समझता हूँ कि शहजाद विल probably will try to play it safe in the sense कि भाई you want to defend with the ball, you put numbers behind the ball, ताकि जिस तरीके से आपने केन्या के खिलाफ खेला था, probably उसी तरह की सिमिलर लाइनअप होगी. 3 at the back, 2 holding midfielders, आपके जो just to protect them in the defense, आपके 3 to 4 reactors जिस तरह भी होते, and you have Hassan Bashir on top. ताकि कम से कम कोई भी एज अ टारगेट मैन कोई बॉल जाए तो हसन कैन यूज हिज एक्सपीरियंस, हिज बॉल कंट्रोल, ताकि कम से कम वो स्पेस बना सके जिसपे ओटिस खान ऑन द लेफ्ट या जिसको भी विंगर खिलाते हैं उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा साथ में. ये मैं जरूर कहूंगा कि इट डिपेंड्स कि भाई किस तरह की
कोई अगर एक भी प्लेयर हमारा स्किप हो गया ना, मतलब जो उस लाइनअप में था, वी आर इन ट्रबल. बट आई होप कि कम से कम ये डिफेंस के अंदर ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल कैन कीप थिंग्स काम, और मामून मूसा कैन डू हिज रोल एज अ राइट सेंटर बैक. मिडफील्ड के अंदर अब ये इस पे जाता है कि कैन रईस नबी एंड अली उजैर गुज्जर, कैन दे कंबाइन एंड ट्राई टू पुश फॉरवर्ड अ बिट मोर एज वेल, क्योंकि वो डिफेंसिवली अगर पीछे रहे तो ठीक है, वो आगे पुशअप करें तो और भी ज्यादा होगा, तो उसमें जाता है. एक प्लेयर है जिसका मैं कहता हूं कि आई थिंक हिज एबिलिटी इज बियॉन्ड हिज एज राइट नाउ, हारून हामिद. 18-19 साल का लड़का है. he was probably our best all round player in the entire Four Nations Cup जो अभी मॉरिशस में हुआ था. थोड़ा सा लालची मैं जरूर कहूंगा, बिकॉज ही हैजंट हैड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट विद हिज मिडफील्डर्स ताकि वो बॉलिंग पास करे, बट वो बेचारा लग रहा था कि वो हर चीज खुद ही करना चाह रहा है. तो आई थिंक इंडिया के खिलाफ he'll probably have to keep that under control. हाँ, अगर कोई मौका मिले ऑन द ब्रेक और इस को कोई गैप वैप मिलता है बिटवीन डिफेंस में, उस पे रन अंडर डिफेंस था कम से कम ना, वो बाकी अपने मार्कर्स को आउट ऑफ पोजीशन करे ताकि फिर वो बॉल प्ले करे इन द सेंटर में, तो समझ आती है. आई थिंक एवरी सिंगल प्लेयर इन दैट स्क्वाड की जो स्टार्ट करेगा, ऑल ऑफ देम हैव टू बी एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट. कोई दे नीड टू फोकस एक तो रखें, ठीक है, जब वो पहुंचते हैं होपफुली उनको जेट लैग का ज्यादा मसला ना हो व्हेनेवर दे लैंड इन बेंगलुरु. आई थिंक जो सीनियर प्लेयर है ना आपके, जो आपके यूसुफ भट्ट हो गए डिफेंस में, गोल कीपिंग में अज्यूमिंग ही स्टार्ट बिकॉज he's our first choice, हसन बशीर ऑन टॉप हो गया. You would hope कि भाई they keep things check in the dressing room ताकि कम से कम everyone is on the same page. But ये है कि भाई keep hold of the ball, defend with numbers. जब भी कोई मौका मिले on the wings पे, काउंटर अटैक के थ्रू हो या जैसा भी हो, ट्राई टू एटलीस्ट नॉट गिव टू मच स्पेस कि वो इंडिया ज्यादा आप पे पाइल अप करें. उनको भी थोड़ा सा खतरा हो कि भाई यार अगर हमने ज्यादा नहीं कर दिया, यहाँ से बॉल जानी है एंड देन समवन वुड बी क्लीन थ्रू ऑन गोल, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा. अगेन मैं इसको अग्री करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट के मुकाबले में फॉर्म गोज आउट द विंडो. ठीक है, ऑन एवरेज ऑन पेपर इंडिया शुड कंसिडर देमसेल्व्स फेवरेट्स. होम क्राउड है, उनके पास एक ऐसी स्टार्टिंग लाइनअप है या ऐसी कम से कम बेंच ऑप्शंस भी है which have played very well very regularly for the last at least 1 year or so. So they know what kind of players that they're dealing with. आपस की बात होती है. पाकिस्तान में अभी तक वो हमारे पास जो स्टार्टिंग लाइनअप की स्टेबिलिटी आनी थी वो अब तक नहीं आई. तो अभी भी देयर स्टिल प्लेयर्स कि भाई अच्छा यार इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसको यहाँ लगाएं, उसको वहां लगाएं, बेंच पे आप किसको ला सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो I would say Pakistan can be a bit of an unknown quantity, but इसी unknown quantity, इसी surprise factor कोई करना ना, केवल defend with numbers, try to absorb pressure as much as you can, कि कोई भी आपको counter attack का मौका मिले, just go for it. क्या पता कि you'll be able to at least get a couple of shots on target, you never know. क्या कम से कम ना कि you don't want कि भाई जो home side है वो आप पे हावी रहे 90 minutes तक. बिल्कुल. अच्छा अली भाई, I have two very particular questions. We know कि it's a 3-6-1 का variant that Coach Azad will probably end up using. We know majority of the players. I think we can very accurately predict कि 9 players to start करेंगे. ठीक है. Back 3 आपकी clear है, मामून, ईसा, अब्दुल्ला, रईस and उजैर in the middle. Right पे उमर हयात, you did well against Djibouti individually, तो अच्छा खेले. Left पे सुफियान start करते हैं, left wing पे रोटेस आ जाएंगे. Harun Hamid, I think he'll be better in a central role, ठीक है, rather than pushing him out to the left. Strike पे हसन बशीर होंगे. Who plays in that right wing role? You can't start Samad. Samad has had a very poor tournament in Mauritius. I do not think he will get a start at any time soon. So who do you play there? अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि हमारे पास कोई खास किस्म का, I mean, you could use Ali Khan Niazi as a right winger because he's basically a right winger. Because he did well against Djibouti when he came. अदनान को बता सकते हैं. अदनान का ये कि बिकॉज अदनान एक्चुअली डेनिश सुपर लीगा लेवल पे या फर्स्ट डिवीजन लेवल पे खेल चुका है, तो ही हैज, ठीक है, उनका करियर फॉर द लास्ट 3 or 4 years has really gone downturn because of off the field issues which I don't want to get into, but because उनके पास जो तजर्बा है, that experience he brings, you should probably consider starting him or at least having him immediately come on off the bench early on in the second half. बट मुझे लग ये रहा है कि शायद अली नियाजी को वो राइट विंगर हो जाए बिकॉज वो डोमेस्टिकली अपनी टीम्स के लिए भी एज अ राइट विंगर ही खेलते हैं. ठीक है, हिज डिफेंसिव वर्क वाज अगेंस्ट
केन्या वाज ओके, मतलब मामूद से उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन किया था, बट ही इज मोस्टली अ विंगर, ही इज नॉट अ डिफेंडर, ही इज अ विंगर, और एटलीस्ट इन अटैकिंग मिडफील्ड टाइप। आप अली नियाजी को रख सकते हो, आप अदनान मोहम्मद को ला सकते हो, यू कुड इवन प्ले आलमगीर गाजी, बट ही इज मोस्टली अ नंबर 10 रोल। Yeah. तो ही इज नॉट द काइंड कि वो रन आउट डिफेंस करेगा और गो टेक इट डाउन द साइड एंड ट्राई टू व्हिप इन अक्रॉस। मुझे लग ये रहा है कि कोई पता नहीं अदनान को स्टार्ट मिल जाए, कोई पता नहीं नियाजी को मिल जाए, ये बट ये जो राइट विंगर वाला है ना, राइट जो सपोर्ट रोल देगा हसन को ऑन द राइट साइड, यू नो, इट्स अप इन द एयर, आई कैन ओनली स्पेकुलेट राइट नाउ। बिल्कुल। एक बात बोलता हूँ, जो भी Yeah. खेलेगा उसकी जॉब बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज इंडिया के पास लेफ्ट विंग में सिर्फ विंगर नहीं, आकाश मिश्रा है, जो उस टाइम पे साउथ एशिया के प्लेयर्स की बात कर लें, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड ट्रांसफर फी, आज इनका मूव कंप्लीट हुआ मुंबई सिटी एफसी में, लगभग 3 करोड़ रुपए दिया है मुंबई सिटी एफसी ने हैदराबाद को उसको साइन करने के लिए, एंड ही इज गोइंग टू बॉम्बार्ड दैट लेफ्ट विंग अप एंड डाउन एज अ लेफ्ट बैक, एंड सो चैलेंजिंग होगा उसके लिए कि वो अपने राइट बैक को कितना सपोर्ट करता है व्हेन ही इज 2 वर्सेस 1, इंडियाज लेफ्ट विंगर हुएवर प्ले, इट कैन बी आशिक, इट कैन बी उदांता और चांगटे, हुएवर प्ले देयर, बट आई थिंक वो आकाश मिश्रा जरूर होंगे वहां पे उनका सिरदर्द बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक जो भी प्लेयर कोच, अगर मैं कोचिंग स्टाफ का पार्ट होता तो मैं उस प्लेयर को चूज करता जो डिफेंस को भी हेल्प करता उस विंग में एटलीस्ट। एंड आई थिंक अदनान मोहम्मद इज डन वेल डिफेंसिवली, जब उनको कैमियोज भी मिले हैं, और जिबूटी के खिलाफ भी स्टार्टेड पुटिंग क्रॉसेज इनटू इट, और उसका और हसन रशीद का पहले भी अच्छा कॉम्बिनेशन रहा इन टर्म्स ऑफ क्रॉसेज। बट माय लास्ट क्वेश्चन ऑन द पाकिस्तान स्क्वाड इज, यूसुफ बट हैज हैड अ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिकली पुअर टूर्नामेंट, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेडेक है, एंड आई थिंक दिस इज द हेडेक विच इज व्हाई ही वाज ब्रॉट ऑन इन द सेकंड हाफ, कि अगर यूसुफ बट नहीं खेलता ना, बैकलाइन बिल्ड ही नहीं करती फिर। आप साकिब स्टार्टेड, साकिब वाज डूइंग वेल, बट ही वाज नॉट एबल टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस फॉर्मेशन। अब यूसुफ ने 2 एरर्स भी किए, व्हिच नो वन एक्सपेक्ट्स अ कीपर ऑफ हिज कैलिबर टू डू। व्हाट डू यू डू नाउ? नहीं, खिलाना तो पड़ेगा यूसुफ भट्ट को आपको, बिकॉज अगर आपने अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखना है तो आप कम से कम ऐसा गोलकीपर चाहेंगे ना जो कम से कम चीख चिल्ला के गालम गलोच से अपने डिफेंडर को जरा ऑन ऑन एज रखे। अगर आपने खामोश सिपाही रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ज्यादा गोलकीपर होते हैं, इवन साकिब ने, साकिब इज अ गुड शॉट स्टॉपर, मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट, एक्सपीरियंस भी है, मालदीव्स की लीग में कई साल खेल चुका है ऑन एंड ऑफ जब भी उसको मौका मिलता है, बट वही बात है ना, खामोश सिपाही है वो। कुछ ना कुछ बोल जरूर देगा, बट यूसुफ जो है वो मुसलसल मुसलसल क्या कहते हैं ना, चिल्लाता और चीखता रहता है डिफेंस, ओए पुश अप पुश बैक, इस तरह करो उस तरह करो। तो यू हैव टू हैव हिम, बट ये जरूर था कि ना कि जो उसने जिबूती के खिलाफ जो लैप्स ऑफ जजमेंट था, मतलब मैं समझता हूँ पहले गोल में जो था, ठीक है, या तो बॉल आ रही होती ना, जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग बॉल खेली थी जिबूती ने डिफेंस से, जो उनके स्ट्राइकर के पास गई थी, या तो बॉल बॉक्स में आ रही होती तो समझ आती कि यूसुफ वांट्स टू चार्ज अप एंड पंच इट क्लियर। बॉल विंग पे जा रही थी, ठीक है, हिज डिफेंस वाज ऑलरेडी वे अप, तो समवन हैड टू डू समथिंग। तो अपनी तरफ से यूसुफ ने उस एंगल को क्लोज डाउन करने के लिए किया, जिबूटी के स्ट्राइकर ने कहा बाहर आया हुआ, ठहर जा, ही जस्ट लॉब्ड इट ओवर द गोलकीपर, इजी गोल बन गया। सेकंड गोल में जो थर्ड गोल था, जो हुआ था, लूपिंग हेडर अनचैलेंज था। अगर यूसुफ की थोड़ी सी ना वो थोड़ा पीछे रहता तो दैट शुड हैव बीन अ सिंपल टिप ओवर द बार, ताकि ना कम से कम उसको पंच करके पुट द बैक इन प्लेयर हो जाता। तो दैट थर्ड गोल वाज जस्ट, हाउ डिड दैट एक्चुअली हैपन? मैं खुद हैरान था। हमने अभी गोल किया उमर हयात से, राव उमर हयात से, जो था कहते कि चलो वी कैन बिल्ड ऑन इट, मे बी गेट an equalizer, और उसके 30 सेकंड बाद जिबूटी मेट थी, मैंने सर यार ये क्या हमारे साथ खेल हो गया। तो यूसुफ विल हैव टू स्टार्ट, बिकॉज अगर आपने अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखना है ना, और कम से कम ही कैन एटलीस्ट बी देयर थर्ड आई, पेयर ऑफ आईज एंड ईयर्स, कि भाई ओए इधर देखो वो फलाना मिश्रा साहब आ रहे हैं या चांग दूसरी तरफ से आ रहा है, एटलीस्ट ही कैन कीप हिज डिफेंडर्स ऑन एज। ये करना बहुत जरूरी होगा। एंड टू बी फेयर टू यूसुफ एज वेल, जब हम इसका एनालिसिस भी कर रहे थे, यूसुफ मेड 2 to 3 सेव्स इवन अगेंस्ट जिबूटी, जो काफी अच्छे उनके चांसेस थे, दैट कुड हैव इजीली गॉन इन। आई थिंक इट वाज जस्ट मे बी अ मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट। आपके पास वैसे ही स्प्लिट सेकंड होता है टू डिसाइड आपने बॉक्स से निकलना है कि नहीं निकलना, बट वी होप कि ही कीप्स अप हिज परफॉर्मेंस। जो होना था वो मॉरिशस से छोड़ के आ रहे हैं, और इंडिया जाके वो वापस ठीक हो जाएंगे। अब मैं आप दोनों को एक दूसरे पे जरा प्ले करना चाहता हूँ। Ali, who do you see in terms of India being your biggest problem for Pakistan? वेल डिपेंडिंग कि कौन Apart खिला from कि कौन आपके लिए पूरी टीम ही प्रॉब्लम है। हाँ, पूरी टीम तो प्रॉब्लम है ही है भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। इफ एनी पाकिस्तानी फुटबॉल फैन इज सेइंग कि इंडिया को
हम मराते थे, मैं कहा भाई साहब आप जरा इनके मैच देख लें, इनके क्लियर प्लेस देख लें, घबराने का वक्त है, ठीक है। देखिए, डिपेंडिंग हु इज फिट, जिस तरह अभी आशीष ने भी कहा था कि कुछ शायद इंजरीज का कंसर्न हो सकता है स्क्वाड में, बिकॉज काफी लोगों को इस्तेमाल किया था ईगो स्टीमाच ने। भाई देखें, चांगते आपके आपके एक विंग पे हो गया, मिश्रा साहब दूसरे विंग पे आ गए, एंड ऑफ कोर्स सुनील छेत्री, बिकॉज आपने अगर गोल रोकने हैं ना, तो आपने जाहिर सी बात है जिनके मेन अटैकिंग थ्रेट्स है, विच माइट बी dragging your defense away from positions and whipping in across or dribbling at you, जिसकी वजह से कि आपने यार टैकल करना है, let him go whatever it is, वो तो लाजमी होना है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मैच में the match will probably be won by who gets to control the tempo in midfield, कि जो मिडफील्ड पे काबू रख सकता है ना, जो मिडफील्ड पे अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को, अपने पुश, अपने प्रेशर को, अपनी क्लोजिंग डाउन को वो कंट्रोल कर सकता है, दैट विल प्रोबब्ली डिसाइड कि मैच में कौन हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए दे विल हैव टू बी ऑन देयर टोज इन मिडफील्ड, अगर उन्होंने कुछ ना कुछ निकालना है इस मैच के साथ। आशीष, मैं समझता हूं आप बताएं कि भाई इस मिडफील्ड की पोजीशन के अंदर इंडिया के लिए कौन की प्लेयर हो सकती है, या ओवरऑल प्लेयर हो सकता है इसके अंदर। आप लोगों ने देखो चांगटे छेत्री का नाम लिया, बट दो प्लेयर का मैं नाम लेता हूँ। एक है सहल, हु इज प्लेइंग नंबर 10 नाउ, वेरी ट्रिकी, एंड वो ना प्लेयर ऐसा है, तब अच्छा खेलता है जब टीम पोजीशन रखती है। ही डज नॉट प्ले वेल व्हेन देयर इज अ काउंटर अटैक, इंडिया इज डूइंग काउंटर अटैक, बिकॉज देन ही नीड टू पास वेरी क्विक, वन टच पासिंग होनी चाहिए। सहल यूजली बीट्स 2-3 प्लेयर्स, go to the space, then pass, you know. तो अगर इंडिया इज गोइंग टू कीप द पोजीशन डे आफ्टर टुमारो अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक जो सहल का बहुत बड़ा रोल होगा फिर उस नंबर 10 रोल में, जो पाकिस्तानी मिडफील्डर्स को बिजी रखेगा, जिसके वजह से छेत्री और चांगटे को स्पेस मिलेगी। और एक प्लेयर का नाम और लेता हूं, अनुरुद्ध थापा, नंबर 8 है, यू कैन प्ले नंबर 6 ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन अपुया फिट है कि नहीं। वो एक प्लेयर ऐसा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, क्योंकि स्लीव्स ना चढ़ा के खेलता है ना, कॉलर खड़े करके खेलता था अजरुद्दीन, वैसा प्लेयर है कि मतलब उसको फिक्र नहीं है, गलती करेगा दोबारा वो ट्राई करेगा, बट ही इज द वन जो इंडिया के लिए पिछले 4 सालों में जिसने मिडफील्ड से गोल मारे हैं। एशिया कप में इसने गोल मारा मिडफील्ड से थाईलैंड के अगेंस्ट। ही ऑलवेज ऑन अ स्कोर सीट, ऑन अ असिस्ट, बिकॉज वो लेट रन लेता है मिडफील्ड से। यू नो ही इज गोइंग टू मेक दोस लेट रन, सपोर्ट छेत्री, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है उसका उसके साथ, टेक्निकली बहुत साउंडेड है। यू नो वो सिर उठा के, कई हमारे यहाँ प्रॉब्लम के हमारे रीजन, हमारे फुटबॉलर्स नीचे देख के खेलते हैं, बिकॉज वो टेक्निकली साउंड नहीं होते, तो बहुत कम फुटबॉलर्स इंडिया में अब आने लग गए हैं तो सिर उठा के खेलते हैं। तो थापा इज वन ऑफ दोस, ही रिसीव द बॉल, ही सीज कि को रन मारा है कि नहीं मारा, या मुझे बॉल ड्राइव करनी है। तो अगर चांगटे, ये तो देखो एक फैंसी होते हैं ना, ऑडी और बीएमडब्ल्यू है, इंजन तो मिडफील्ड में ही है, तो सहल और थापा का ही वो इंजन होने वाला है इंडिया के लिए। अगर अपूया फिट हो जाते हैं तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज फिर तो बहुत टेक्निकल मिडफील्ड बन जाता है इंडिया का, क्योंकि अपूया इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल प्लेयर, ही कैन ड्रिबल पास कपल ऑफ प्लेयर, देन सेम थापा एंड सेम सहल। तो वो अगर इन तीनों का ट्रायो रहता है मिडफील्ड में, तो थोड़ी जॉब पाकिस्तान मिडफील्डर की बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अब वो टीम नहीं रहेगी। अब सुनील छेत्री को मार्क कर दो तो कहानी सारी खत्म हो जाएगी, वैसी टीम अब रह नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, ऑन टू यू। अब पाकिस्तान की टीम आपने भी देखा होगा, कुछ नाम आपने भी सुने हैं। Who do you see as India's biggest problems when it comes to Pakistan अरे team? नहीं, मैं दो प्लेयर स्ट्रेट अवे बोलूंगा, मैं मतलब जिनको मैं देखता भी आ रहा हूँ। एक तो को हसन बसीर है, 36 साल के जरूर हो गए हैं, बट आज से नहीं, मतलब उनको पिछले 10 सालों से उनके बारे में बात करते आ रहे हैं, यू नो। एंड मुझे लगता है कि उनके साथ ओटिस खान, ये अगर इन दोनों के दोनों फॉरवर्ड हैं जो गोल मारने का होता है ना, मादा रखते हैं, वो बिल्कुल। शायद पाकिस्तान, देखिए मुझे ज्यादा मैंने प्लेयर्स देखे नहीं, जो लोकल प्लेयर उनको ज्यादा देखा नहीं है मैंने, बट इन दो प्लेयर्स को कोई सुना भी है, देखा भी है, और आप लोगों से बात, मोहम्मद जो सैनवाज हमारे लंदन वाले भाई हैं, उनसे भी बात होती रहती है। तो ऑटिस का मैं नाम मैं लूंगा कि इस लड़के में पोटेंशियल है। इंग्लिश लीग जो फॉलो करते हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, स्पेशली जो साउथ एशियन प्लेयर को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इन दो प्लेयर से इंडियन डिफेंस को जो है काफी वो रखना पड़ेगा। उसके अलावा तो यार देखो, हारून हमीद है, जो मुझे लगता है कि अगेन, यू नो, एंड मैं, लोग बोल रहे होंगे कि मैं सिर्फ उन्हीं का नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर खेलते हैं, बट सैडली हम पाकिस्तानी प्लेयर देख नहीं पाते हैं। अब पता नहीं है बिल्कुल ना, स्क्वाड चेंज हो जाती है, 3-4 साल में पाकिस्तान की टीम आती है, तो जो एटलीस्ट बाहर खेलते हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये प्लेयर मुझे तीन प्लेयर लगते हैं,
हारून हमीद हो गया, जो मुझे लगता है कि मिडफील्ड में थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, ऑटिस खान हो गया, एंड हसन बशीर का एक्सपीरियंस हो गया। अगर इंडियन टीम में छेत्री है तो मैं क्वालिटी नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, नंबर्स नहीं, पर हसन बशीर का एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस फॉरवर्ड लाइन में, बिकॉज उनको पता है कि ऐसा मैच खेलना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इस मैच का प्रेशर हैंडल करना है, बिकॉज देयर इज चांस दैट पाकिस्तान का क्या पता एक ही चांस बने उसमें उनको गोल मारना है, तो पाकिस्तान चाहेगी कि इनके आसपास ही चांस बने ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उस चांस को कन्वर्ट करवाएं या कन्वर्ट करें खुद। बिल्कुल बिल्कुल। So we're at the 45-minute marks and we've debated, कि कौन किस साइड पे खेल रहा होगा, क्या होगा. But I'm going to start coming to the close of this and I'm going to ask Ali भाई आपकी क्या, I know it's very difficult to predict कि पाकिस्तान इंडिया में क्या होगा, but आपने भी पाकिस्तान को देख लिया, इंडिया की फॉर्म भी देख ली, हम ये तो कह सकते हैं कि यार देखो इंडिया आर डेफिनेट फेवरेट्स and if you were making an educated decision you would say India would win. But how close of a match will this be? Is this going to be one-sided? ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी कौन सी टीम पहले गोल स्कोर करती है, बिकॉज अगर अर्ली गोल हो गया ना बिलफर्ज, अगर इंडिया ने लेट्स से इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स में गोल स्कोर कर दिया, then you can expect them to score at least a second or even a third goal. Pakistan might nick a one goal as well, जिस तरह 2018 की सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हुआ था। तो अगर मैं समझता हूँ कि if the game is let's say fairly even, at least 0-0 at half time, then I think एक ही गोल काफी होगा डिसाइड करने के लिए मैच को। ये मेरी राय है, आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज मैंने बड़ी राय दी थी अपने इस 4 नेशन टूर्नामेंट में, हर बार में गलत हुआ, हर बार में गलत हुआ। ये सबके साथ ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। आशीष, coming to you, do you agree with Ali कि अगर मतलब जिसने the early team will have a really good chance of trying to win out this अरे match? दो चीजें हैं, मैं इसमें इंडिया के बारे में बात बताना चाहूंगा। 2023 में इंडिया ने गोल कंसीड नहीं किया है। इंडिया सेंटर बैक पेयरिंग जो हमें अब मिली है, संदेश जिंगन, अनवर अली, इट माइट बी दी वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, नॉट अगर साउथ एशिया, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। संदेश जिंगन एक लीडर है, ही इज वेरी एग्रेसिव इन टैकल्स, विनिंग हेडर्स। मैंने संदेश जिंगन का अगर हेडिंग परसेंटेज, एयरएल परसेंटेज विन होगा इंडिया के लिए पिछले कुछ सालों में, आई थिंक इट शुड बी अबाउट 90-95%। उनको एक डिफेंडर मिला अनवर अली, was fantastic with ball on ground, he fantastic spreading the ball away, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो एक तो ये मैं बताऊंगा कि गोल इंडिया ने कंसीड नहीं किया है पूरे इस साल में, 6-7 मैच इंडिया ने खेल लिए हैं 2023 में। एक मैं बात, दूसरी बात बोलूंगा कि इंडिया के साथ दो प्रॉब्लम हुई है, इंडिया जल्दी गोल नहीं मार पाता है कई बार, पर मंगोलिया के अगेंस्ट हमने 15 मिनट में 2 गोल मार दिए और फिर पूरा मैच ठंडा हो गया हमारा, मतलब अच्छा नहीं हुआ, वी लॉस्ट द टेम्पो। अगेंस्ट लेबनान वी डिडंट स्कोर एट टिल हाफ टाइम, बट आफ्टर हाफ टाइम वी केम एंड वी स्कोर 2 गोल्स, वी कुड हैव स्कोर 4 गोल्स आल्सो। तो ये पता नहीं है ना कौन सा वाला मैच निकल के आएगा। एंड हमने एक बीच में एक मैच और खेला था वटानू के अगेंस्ट, और बहुत घटिया खेला था, मतलब एक्सपेक्टेशन से जो हमारा बहुत घटिया हुआ था। जीते हम वो भी थे, 1-0 जीते थे, बट एक्सपेक्टेशन से हमारा खराब गया था। तो ये नहीं पता कि कौन सी इंडिया टर्न अप करेगी, बट एक चीज है कि मुझे जो पता है कि डिफेंस हमारा बहुत सॉलिड है। गुरप्रीत अगर गोल में रहेंगे, वहां पे भी एक बहुत बड़ा स्टीमैच भाई का जादू अलग है। वो क्या करते हैं, हर मैच वाला गोलकीपर खिला रहे हैं फ्रेंडलीज में, एक मैच अमिंदर खेलता है, एक मैच गुरप्रीत खेलता है। और आप सोचो ना, फाइनल मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूजुअली आप एक प्लेयर लेके आते हो जो प्लेइंग 11 का पार्ट होता है। आई थिंक वर्ल्ड में तो ऐसे ही चलता है ना, इंडिया वाला Normally सिस्टम तो है। captain हमारा होता बंदा जो है। प्रेस नहीं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा तो खेलता ही नहीं है। अमिंदर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे फाइनल की प्री मैच Mind में, games वो है, खेले mind नहीं। games है। नहीं, यूजुअली आप देखो यूरोप में जब जैसे चैंपियंस लीग वगैरह होता है तो कंपलसरी यूएफए के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्लेइंग 11 का प्लेयर लाना पड़ता है। तो एटलीस्ट जो प्लेयर आता है यूएफए चैंपियंस लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको पता होता है कि वो खेलेगा। इंडिया में पिछले कुछ 1-1.5 साल से अलग ही चीज चल रही है। स्टीमैच सर जिस प्लेयर को लेके आते हैं प्री मैच में, वो खेलता ही नहीं है। बट आई एम सेइंग गोल कीपिंग बहुत सॉलिड है, गुरप्रीत इज सॉलिड अगर खेलते हैं तो डिफेंस एक सॉलिड होने वाला है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इट शुड बी अराउंड 2-0 और 1-0 फॉर इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि हम क्लीन शीट की जो हमारी स्ट्रीक चली आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी। पाकिस्तान कैन क्रिएट अ हेडेक, बट इंडियन डिफेंस ना 1-on-1 बहुत अच्छे हैं, कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है 1-on-1 है तो संदेश इज वेरी गुड टैकलर ऑफ द बॉल। कोई लॉन्ग बॉल अगर आती है, वेरी गुड विथ क्लियरेंस के मामले में, आई थिंक। और मैं ओवर एग्जेट नहीं कर रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, बट मुझे लगता है दोनों इस सेंटर बैक पेयरिंग में बहुत पोटेंशियल है इंडिया के लिए। बिल्कुल। We've covered the game more or less, and I'm just going to ask one question before we sign off, and I think Ashish you'd be better positioned to answer this. पाकिस्तान की टीम में अभी जो from what we know they are figuring out the fastest way to get to Bangalore, and by tomorrow
मतलब they'll be in the air, hopefully they'll either reach or they'll be in the position to reach. Worst case scenario ये नजर आ रहा है they'll reach some time before the game. In any situation, it's not ideal. If they are reaching very few hours before the game, which is also a possibility at this moment in time, what are the chances of getting a reschedule of the fixture? या फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि जवानों घुस जाओ फिर मैदान में देखी जाएगी? से देखो, अगर वो मैच से पहले पहुंच जाते हैं तो मुझे लगा मैच होगा, बिकॉज एक तो सैफ का है, एएफएफ नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा है टूर्नामेंट अभी, इंडिया में ब्रॉडकास्टर कंफर्म नहीं हो पाया है, टीवी ब्रॉडकास्टर कौन होगा फॉर एग्जांपल, लाइव स्ट्रीम का कंफर्म हो गया, फैन कोड कर रहा है, बट अभी तक कौन सा चैनल दिखा रहा है किसी को पता नहीं है इंडिया में, 2 दिन में मैच है, बाय द वे मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि सैफ कर रहा है। एएफएफ के जो खुद के गेम्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स पे आते हैं, जियो टीवी पे आते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज विद 10 कैमरा सेटअप एंड एवरीथिंग। अब मुझे सुनने में आया शायद 5 ही कैमरा यूज होने वाले हैं सैफ में, तो वो शायद स्टार स्पोर्ट्स की क्वालिटी के ही नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं, तो अभी तक ये सुनने में भी क्लैरिटी नहीं आई है, तो काफी कुछ चीजें लास्ट मोमेंट पे चल रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आई थिंक मैं आपको टाइम बता देता हूँ, प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी अभी मेरी टीम के पास शेड्यूल आया, 12 बजे रखा है इन्होंने, लेबनान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, 2 बजे रखा है इंडिया, कुवैत, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो इसका अगर मतलब कल 2 तो बजे उन्होंने कल इन्फॉर्म प्रेस थी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान रखी। की टीम बिकॉज एट दिस मोमेंट इन टाइम हम भी बात करें द टीम इज नॉट बोर्डेड एनी फ्लाइट, दे आर बट आई फाइनलाइजिंग थिंक देयर फ्लाइट। बट हाँ, कितने डिस्टेंस की फ्लाइट है एक बार मैं देख लेता हूँ मॉरिशस से Yes, इंडिया के लिए। Mauritius का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट टू बैंगलोर, दे विल ईदर स्टॉप इन दुबई और ईदर दे विल गो टू मुंबई फर्स्ट एंड देन गो टू बैंगलोर, तो वो उनको एक तो वैसी वो टिकट देखो, पड़ रहा है। बॉम्बे से बैंगलोर दिन भर फ्लाइट चलती हैं, ठीक है, मैं वेरी ऑनेस्ट बता दूं, और वो ज्यादा टाइम है नहीं, तो मेरे हिसाब से मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर मुझे कोई फ्लाइट दिख जाए बता दूं, शायद इशू है पाकिस्तान उसको। का मॉरिशस का, बिकॉज मॉरिशस इज स्लाइटली आइसोलेटेड, उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो उतनी रेगुलर नहीं है, दिन में भी 2 से 3 ही चलती हैं, तो होपफुली लेट्स सी पाकिस्तान कब उसमें बट बाइट अगर करता है। अर्ली मॉर्निंग में दुबई की फ्लाइट अगर ले लें, दुबई से तो देखो रेगुलर आ रहा है मॉरिशस से फ्लाइट, ठीक है, बट हाँ, ले अभी ओवर है तो ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि ले ओवर है, और वो ले ओवर में कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो पता नहीं। तो अगर ये आज रात को, अगर ये क्या पता दुबई आ जाए किसी तरह लास्ट फ्लाइट पकड़ के, बिकॉज सी, एक चीज तो कर ही सकते हैं, अगर वीजा आया भी लेट नहीं, दुबई आ जाए, दुबई के लिए शायद पाकिस्तान को वीजा नहीं चाहिए वहां आके। पासपोर्ट इंडियन हाई कमीशन के पास है, दे कांट फ्लाई विदाउट, अब मिले हैं जाके तो वो फ्लाई नहीं कर सकते थे। हाँ, बट अब एटलीस्ट दुबई तो आ सकते हैं, तब सुबह फिर जो भी तो अर्ली जो मॉर्निंग भी फ्लाइट वो दुबई से अब तो बैंगलोर ये कर था कि सकते एज हैं। सून एज दे हैड द पासपोर्ट्स इन हैंड, वो यही था कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ मॉरिशस। हाँ, तो आई थिंक मॉरिशस से बाहर आना जरूरी है, बट अब पोस्टपोन होना मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान मैच डे पे ही पहुंच रहा है, शायद कल अगर नहीं पहुंच, अगर कल पाकिस्तान पहुंच जाता है बैंगलोर, मुझे लगता है तो मैच जाएगा आगे एज पर शेड्यूल, और नहीं जाता है तो आई थिंक देन सैफ कमेटी क्या करती है क्या नहीं करती है। देयर वाज सम मर्मर्स, आई हर्ड दैट कि वो पोस्टपोन कर देंगे मैच, बट देखो, पोस्टपोन तो मैच होगा नहीं, या तो नहीं कोई प्रीपोन करना पड़ेगा, मैच तो उस दिन कोई ना कोई होगा, बट इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, फिर 2 और टीमें भी हैं, उनको भी प्रिपेयर करना कि आप मैच खेल लो भाई, एक दिन पहले आपके शेड्यूल से, तो वो भी तो भाई, नेपाल बोलेगा हमें क्यों खेले, ये तो इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, आपस में निपट लें लोग आपस में, तो वो भी एक सिचुएशन रहती है हमारे यहाँ तो। भैया पॉलिटिक्स तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हैं, नेपाल, बिल्कुल। भूटान, बांग्लादेश भी कर ही सकते हैं। तो पाकिस्तान की किस्मत जो है ना वो सबसे बुरी है साउथ एशिया में, कोई ना कोई नया मसला चलता रहता है, बट बट आई थिंक होप दे रीच, देखो मुझे लगता है कि पहुंचे वो टाइम पे, मैं और थोड़ा जेट लैग ना हो, क्योंकि देखो एक टाइम जोन भी चेंज होता है, मुझे नहीं पता कितने टाइम का डिफरेंस है मॉरिशस इंडिया में, बट आई होप दे रीच टुमारो मॉर्निंग, सो एटलीस्ट दे कैन गेट 8 आवर्स स्लीप और समथिंग, एंड देन दे कैन ट्रेन इन द इवनिंग ऑल्सो, उनके लिए 8-9 बजे भी खेल सकते हैं, कोच शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले हैं, प्लेयर रेस्ट कर सकते हैं। मैं ही होप कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी एक अच्छा एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाहता हूँ, फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान किसी भी लेवल पे खेलता है तो मीडिया का, नॉट स्पोर्ट्स मीडिया, जनरल मीडिया का थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा है कि हम थोड़ा आईबॉल्स जनरेट कर सकें, एक तो वो है, पर उसके लिए कॉम्पिटिटिव मैच होना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि उसके लिए शायद पाकिस्तान में कोशिश, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा शायद, क्या आज रात को वो दुबई पहुंच जाए तो उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दुबई से तो बैंगलोर रात भर फ्लाइट चल रही है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चले, वी गोइंग टू साइन ऑफ, लास्ट वन फॉर यू आशीष, योर फाइनल प्रेडिक्शन एंड अली योर फाइनल प्रेडिक्शन। आई मे गो विद अ क्लीन शीट, मैं वो कंटिन्यू देखना चाहूंगा जो इंडिया कर रही है, एंड आई थिंक इट माइट बी अ क्लोज गेम, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान नेम इनटू इट, टैग लगा हुआ है, उसके वजह से जो इंडियन प्लेयर्स भी होंगे ना, जैसे चांगटे सहल, जो जो स्किलफुल ड्रिबलर प्लेयर है, वो भी 2 बार सोचेंगे यार कि मैं ये ट्राई करूं। फॉर एग्जांपल एक गोल हुआ लेबनान के अगेंस्ट, मुझे लगता है हम देखे थे, सेकंड गोल था वो, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नटमैक, निखिल पुजारी ने रिवर्स नटमैक नेटवर्क मारा, करा फिर था। चांगटे,
हाँ रिवर्स नेट में मारा, फिर चांगटे ने शोल्डर दिया, तो वो ऐसे मूवमेंट इंडिया पाकिस्तान मैच में शायद कम हो, कि प्लेयर के बैक ऑफ माइंड रहता है कि मैं अगर गलती कर दूं यार, यार कि मुझे सारे लोग ट्रोल करेंगे, या क्योंकि अब तो बहुत लोग देखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत टाइट रहेगा, टेक्टिकली रहेगा मैच, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2-0 रहे इंडिया के फेवर में। आई वुड लाइक टू सी इंडिया कीप द क्लीन शीट टेम्पो गोइंग ऑन, because that is progress in terms of I don't want to concede against nations who are third tier or fourth tier of Asia. अली भाई आपके आपके आपकी फाइनल प्रेडिक्शन। 0-0 ड्रॉ। I think ओह वो मेरी बात भी हो That जाती would be है, a और miracle for सही है ना। Pakistan. मतलब keeping a score goalless score sheet against India would be a major miracle. 90%, 99% certain ये बिल्कुल prediction गलत होगी मेरी, but I 0-0 hope draw. their goals. I hope their goals from both teams ताकि both set of fans get a chance to celebrate. I hope it's close. India will probably win, but I hope Pakistan puts up a fight. This was Footballistan, Pakistan versus India का preview था. It will be live, inshallah, on Wednesday. शाहरुख, your prediction also right? आप भी थोड़ा यार ज्ञान दो यार, आप भी मैं तो दोनों यार देखो, जगह को जानते हो अच्छे I तरीके। think Pakistan will somehow nick a goal. It probably would be 2-1, 3-1. I'm predicting So India to I win. I think think that will be even Pakistan will score. that will be a great achievement of Pakistan, considering India have not conceded goal in 2023, in 6 games till now, and played good nations. ऐसा नहीं है कि कोई बुरे मैचेस हमने खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So this was Footballistan. This is what we're expecting. आप भी गेम को ट्यून कीजिएगा, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह we'll be back with the next one. मिलते हैं ब्रेक के बाद।